اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دونوں موجود ہیں، لیکن پھر بھی دھندا ہو رہا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ ان سے تو آپ مل چکے ہیں، نام پروین اختر ہے، لیکن یار لوگ پیار سے انہیں میڈم پینو کہتے ہیں۔ شہر کا ایک بڑا کوٹھی خانہ چلاتی ہیں اور ان کے کوٹھی خانے پر ہر قسم کے گاہکوں کی آمد و رفت سر شام ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں تو اپنی جگہ، لیکن پینو کون ہے اور اس آنٹی کی اپنی سٹوری کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ کیسے آپ اس کام میں؟ بس کام میں چھوڑو آگے، اس کا پاپا تھانے دار ہے نا، اس نے دوسری شادی کر دی، بس میں ادھر ہی رہ گئی۔ تو اب کیسے زندگی اپنی گزارتے ہیں؟ وہ تو آتا نہیں ہے۔ تو آپ تھانے دار کی مسز ہیں؟ ہاں، تو چھوڑ دیا، وہ مجھے چلا گیا۔ تو گزر اوقات کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا ہے، بس پرانے لوگ جو آنے والے عزت کرتے ہیں، بیٹھے ہیں، بس اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو بچے کا ساتھ ہے زندگی؟ بچے کا ساتھ ہے تو پھر بچے کو تو پڑھانا لکھانا ہے، جیسے بھی ہوگا وہ کریں گے، اللہ جو کرے گا ہمارے ساتھ ہے، اب ہم اللہ کا شکر ہی کر سکتے ہیں۔ تو مر گیا، دوسری عورت لے گیا، تو اوپر سے تھانے دار تھا۔ نہیں، اگر تھانے دار نہ ہوتا عام آدمی ہوتا سے؟ عام آدمی ترس ہے تو ہمارا ترس کری، پولیس تو بڑی کمینی ہے، ترس نہیں کرتی کسی کا بھی۔ جب یہ وردی پہن لیتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں، تو قسمیں اٹھا کے پھر وہی کام کرتے ہیں۔ یہ پولیس والے، ان کا کبھی کمال نہیں کرنا چاہیے۔ پینو کے کوٹھی خانے پر ہر قسم کی عیاشی بآسانی دستیاب ہے۔ گاہک اگر تفریح طبع کے لیے چاہے تو اپنی پسند کے مال کے ساتھ کوٹھی خانے کے ایک تاریک کمرے میں بھی ملاقات کر سکتا ہے۔ میڈم پینو کا تو خوب تعارف ہو گیا، چلیے اب ان کے کوٹھی خانے کی ذہنی مریضہ سیکس ورکر زوبی سے ملتے ہیں، جس کا کام دن بھر چرس پینا ہے یا پھر کسی گاہک کا انتظار کرنا۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے دے سکے گا اتنے، کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ ان کی پوزیشن والوں پتہ معلوم ہو جاتا ہے نا، کتنے خرچنے والے، اتنے نہیں خرچنے والا۔ جو خرچنے والا اس کو پھر بڑے رقم کی کہتے ہیں، جب نہیں خرچنے والا اس کو پھر چھوٹی پیمنٹ بول دیتے ہیں کہ اتنے دینے ہیں۔ عام طور پہ اس کام میں مشکلات کیا ہیں؟ مرد کے ساتھ ڈیلنگ ہے؟ بس وہ کال گر زوبی تو نشے میں خاصی ٹن ہے، اس لیے شاید بول نہ سکیں گی۔ اسی دوران آپ کی ملاقات مینا سے کرواتے ہیں۔ مینا پینو کے کوٹھی خانے کی سب سے مہنگی تتلی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا ایک ذاتی مسئلہ سن لیجئے۔ جی، میں لاہور کی رہنے والی ہوں، گلاب دیوی میں پیدا ہوئی، پرورش بھی وہیں کی ہے، اور وزیر آباد چھوٹی سی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ پہلے تو 2 سال میرے سسرال والے اچھے رہے، لیکن جب میرے والدین کی مجھ سے لڑائی تھی، والدہ نے میری شادی کی تھی اور والد صاحب میرے ابو ان سے ناراض تھے، والدہ سے، بات بات پہ ان کو گھر سے نکال دیتے، ان پہ شک کرتے، ایسے یہ وہ کافی عرصہ تک یہ ان کی لڑائی رہی۔ پھر میرے والدین سے میری صلح ہو گئی۔ والدہ والد صاحب کا جھگڑا بہت ہوتا تھا؟ جی، بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ والدہ کی نیت بہت خراب تھی، والدہ نہیں تھی ٹھیک، والدہ کا قصور تھا۔ اور جب کیا قصور تھا؟ قصور ان کا یہ تھا کہ وہ کسی اور سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی والدہ۔ جی۔ غربت اور جنسی ہوس کا شکار مینا کی ماں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد آشنا کے ساتھ فرار ہونے کی بجائے اس سے شادی کر لی، لیکن سوتیلے باپ نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ملاحظہ کیجئے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہونے والا ایک روح سوز سچا واقعہ۔ زیادتی یہ تھی کہ والد صاحب جو ہمارے سگے تھے وہ فوت ہو چکے تھے، اس کے بعد جو ستیلے باپ تھے چھوٹی بہنوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں انہوں نے۔ میرے ستیلے باپ نے ان کے ساتھ ان کی عزت لوٹی ہے، اور میری چھوٹی بہن ہے، وہ اس کے ہاں 6 ماہ پریگننسی ہو گئی تھی، جو کہ آپریشن کے ساتھ اس کا بچہ واش کروایا۔ ماں باپ کے جھگڑے، سوتیلے باپ کی درندگی اور گھر کے حالات نے مینا کو شادی کے رشتے سے متنفر کر دیا اور وہ کبھی دلہن نہ بننے کا خواب دیکھنے لگی، لیکن تو مجھے بہت سخت نفرت تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن حالات اور مجبوریوں نے مجھے شادی کرنے پہ مجبور کیا، تو مجبوراً مجھے شادی کرنا پڑی، جو کہ میری والدہ نے مجھے میرے سسرال والوں کے آگے 21,000 میں بیچا۔
माँ अपनी पेट जनी को गुर्बत की खातिर बेच डाले, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। लेकिन जिसने मीना को खरीदा वो तो इसे लौंडी बनाकर ही रखता ना। सुनिए आदम की एक बदनसीब औलाद का दुख। तो पहले तो काफ़ी बेहतर मेरे साथ सही सलूक करते रहे, 2-2.5 अरसा तक सही अच्छा, मतलब जैसे कपड़ा लेके देना, जूतियाँ लेके देना, खाना पीना, ये वो सब अच्छे थे। लेकिन जब मेरे वालिदैन से मेरी सुलह हुई है उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ज्यादतियाँ करनी शुरू कर दी। हालांकि मैं घर का भी काम करना, बाहर भैंसों का चारा लाना, ऐसे ये वो सब कुछ करती थी। हालांकि मैं शहर की लड़की थी कि मैं ऐसा काम जानती नहीं थी कि जैसे मैंने खुद अपने ससुराल वालों के घर में जाके किए। लेकिन उन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, जूतियों के पास बिठा के रोटी देनी। हालांकि पकाना भी मैंने खुद है, सबको मैंने पका के देना। मेरी नंद उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा मेरे पास था, जिसकी वजह से मेरे जो मियाँ हैं वो उनको यही कहते थे कि तू अपनी भांजियों को यही कहते थे कि इनको मारो। ससुराल की बेजा मारधाड़ ने मीना को एक गैर मर्द की झोली में डाल दिया, लेकिन उस शख्स ने तो तमाम साबका मजालिम का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। हमें जो इस काम में लेके आया ना, वो आदमी, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा और उसका प्यार बढ़ गया, तो उसके ही ना मतलब 3-4 माह की प्रेगनेंसी हो गई मुझे। मैं उसके साथ लड़ चुकी थी उस वक्त, तो मैंने उससे कई दफ़ा कहा कि या मुझे पैसे दो, खर्चा दो, या मुझे इसको मैं दफ़ा रफ़ा करवा दूँ, ये मेरे पास ना रहे। क्योंकि जब किसी के साथ प्यार हो तो फिर उसकी निशानी पीछे रह जाए ना, तो इंसान को जीते जी मारती है। जब भी वो सामने आती है तो ऐसे ही है कि अभी मर जाएं, इसको ना रहने दे, इसको ये ऐसे कर दें। बच्चे को मैंने फारिग करवा दिया 4 महीने का। उसके बाद मैं इतनी बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी कि इस कदर के मेरे बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे, कि मुझे 4 बोतलें खून की लगी हैं। आशिक नामुराद की बेवफाई ने मीना को आखिरकार पीनों के कोठी खाने की तितली बनाकर अयाश मर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया, और आजकल इश्क की मारी ये दुखियारी एक तजर्बाकार कॉल गर्ल है। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इस काम में हो रही हूँ, जहाँ तक कि मेरा भी तजर्बा हो रहा है कि मैं भी इन बातों को, अब जो मुझे लेके जा रहे हैं, मैं भी उनको कवर कर सकूं। इस बातों में मैं भी हो रही हूँ थोड़ी सी तजर्बाकार। तो हम नाइट पे जाते हैं, टाइम का हम नहीं करते। अगर टाइम का हो तो 1000 रुपये से कम नहीं लेते। तो जो नाइट है, नाइट तो हमारी 2500-3000 यहाँ तक होती है, और सुबह तक। सौतेले बाप ने इज्जत लूट ली, सगी माँ ने 21,000 में बेच डाला, खरीदने वाले ने मार मार कर हड्डियां तोड़ डाली, नई मोहब्बत ने हमला करके घर से भगाया और चकले पर लाकर एक बकरी की तरह बेच डाला, जहां हर रात आदम की बेटी मीना की बोटी बोटी किराए पर चढ़ा दी जाती है। यह थी हमारे ऊंची पग वाले इज्जतदार मुआशरे में बसने वाली एक मजलूम औरत की सच्ची दास्तान। पाकिस्तान में जिस्म फरोश औरतों की एक अच्छी खासी बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके बीसियों दुख हैं, सैकड़ों गम हैं। अगर आप आदम की इन बच्चियों के दुख जानना चाहते हैं, इनके गम सुनना चाहते हैं, हमारे मुआशरे की औरत की खून से लिखी हुई इबारतें पढ़ना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। कॉलगर्ल की जिंदगी एक ऐसी शार-ए-आम है जिस पर टूल टैक्स अदा करके सिर्फ मर्दाना सवारी आ सकती हैं। पाकिस्तान में धंधा करने वाली तितलियां ब्रोकर्स और आंटियों के अड्डों पर बआसानी दस्तयाब होती हैं। औरत को किराए की साइकिल बनाकर धंधा करने वाले ये खवातीनों हजरात बाअसर अफराद की सेवा करने की बदौलत खासे ताकतवर हो जाते हैं, और छोटे मोटे सरकारी एहलकार को तो ये लोग मुंह भी नहीं लगाते हैं। अक्सर आंटियां बड़ी नामी गिरामी शख्सियात को अपनी जेब में रखने की दावेदार नजर आती हैं। छापे, अयाश मर्दों के साथ फड्डे और मार कुटाई
कॉल गर्ल के जीवन साथी हैं। अगर कभी सरकारी मशीनरी को जलाल आ जाए और छापे पड़ने शुरू हो जाएं, तो जिस्म फरोशों को इन छापों की पेशगी इतला मिल जाती है और वो बर वक्त अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अल्लाह जाने पुलिस की मुखबरी कौन कर देता है। पाकिस्तान में जिस्म फरोश औरतों की कहानी बड़ी लंबी है। अगर आप ये सारी कहानी सुनना चाहते हैं, औरतों के दुख जानना चाहते हैं, हव्वा की बेटी को हालात के दोज़ख ने किस कदर जला रखा है, इंसानी हवस के कारनामे क्या हैं, जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। जिन दिनों कोठी खानों पर छापे पड़ रहे हों या धंधे में मंदी का रुझान हो, कॉल गर्ल सड़कों पर निकल आती हैं। आज मीना का भी आउटडोर जाने का मूड है, इसीलिए वो बन ठन कर निकली हैं। नहीं, रोड पे पसंद करते हैं लड़कियां। हमारा गैंग पूरा होता है और जो लड़की पसंद आए उसे ले जाते हैं। तो उनमें से जो अच्छी लगे, जिसकी और जिसकी पीछे तो वो अच्छी लगी ले गए उनको। बस हम सीधे साधे से थे, बस बुरी जिंदगी में आ गए। कफन पहन लिया इस जिंदगी का सर पे। पेशा करने वाली औरतें टोली की सूरत में सड़कों के किनारे गाहक को मुख्तलिफ किस्म के खुफिया इशारों से अपनी तरफ माइल करती हैं। वो कोड वर्ड्स क्या होते हैं, मीना ने हमें बताया। किसी को इशारा करना पड़ता है, किसी को आंख मारनी पड़ती है, किसी को यूं करना पड़ता है। आंख कैसे मारती है? आपको मालूम? इसका कहते हैं हाय, इसका नंबर। अच्छा, तो फिर वो क्या पास आ जाता है? पास वो आंटी के पास भेजते हैं। फिर इशारा भी कर देते हैं कि हमारे पास नहीं, उधर आंटी के पास। अगर हमें कोई पुलिस का चक्कर भी हो जाए तो हम एक दूसरे के पास नहीं ठहरती, लहदा 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 खड़े होते। एक इधर खड़ी होगी, दो उधर खड़ी होगी, दो उधर आगे खड़ी हो गई। ये मसला हम खुद कवर करते हैं कि जो लड़का हमें ले जाने के लिए आया वो उसको भी कोई तकलीफ ना हो, हमें भी ना हो। जिसने भागना चाहे वो भाग भी सकती है, कि हमारे साथ तो नहीं है। मीना की जिंदगी में हर तरह के मर्द का गुजर होता है। हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कई साहिबान इसके सामने काने हैं। कौन कौन आता है आमतौर पे आपके पास? हमारे पास सब सारे लोग आते हैं। डॉक्टर्स, ऐसे लोग ज्यादा लेके जाते हैं। SHO भी आएगा, थानेदार भी आएगा। सारे ये जो पूरा अमला है जो मेरे पास आ चुका है, मैं सबको जानती हूँ कौन इज्जत वाला है। अगर वो इज्जत वाले हों तो अपनी घर में जो बीवियां उनके साथ ऐसे ताल्लुक बनाएं। हम जैसी लड़कियों के साथ क्यों ताल्लुक बनाते हैं? मीना एक कॉल गर्ल सही, झूठ बोलना इन जिस्म फरोशों का कारोबार सही, लेकिन आज ये सब कुछ सच सच बताने को तैयार है, भले वो इसके जिस्म की कीमत ही क्यों ना हो। पूछते हैं कि आपका रेट क्या है, फिर हम अपना रेट उनको बताते हैं कि ये हमारा रेट है। फिर जब वो 3000 3,500 सुनते हैं तो फिर कहते हैं नहीं आंटी कम करो, ऐसे करो, ये करो। आंटी कहते हैं आपको? मुझे तो नहीं, वो जो मेरे साथ मेरी नायिका है उसे आंटी कहते हैं। तो ऐसे करो, नहीं कम करो। फिर ऐसे भी लोग देखे हैं कि दूर दूर से जाते हुए गंदी गाली भी निकाल जाते हैं। अच्छा, गंदी गालियाँ निकालते हैं, ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं औरतें, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कई मर्द हज़रात ऐसे देखे हैं कि जा रहे हों, बाइक पे होंगे तो टांग मारेंगे और लड़की को गिरा जाएंगे। और बाज़ हज़रात ऐसे देखे हैं कि लड़की के मुंह पे थूक जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़लालत है इस काम में। जो लोग कॉल गर्ल से कुर्बत के ख्वाहिशमंद होते हैं वो खलवत के लम्हात पाते ही अपनी दुखों भरी दास्तानों की कैसेट चला देते हैं। लेकिन मीना समेत अक्सर कॉल गर्ल्स मर्दों की इस आदत से खूब वाकिफ हैं। बस ये